Hey everyone, hello and welcome back to my channel Vet Life Nihal. I am Nihal Shrivastava, a third year student of Ranchi Veterinary College, BAU Kanke. So this video is upon the request of a lot of students who wanted a detailed review of my college, that is RVC. So I am making this video explaining everything that I have learned in this college in 2.5 years of my study, and I'm also thinking of starting a review series for various veterinary colleges in India. So if anybody wants information about specific college और या कोई information deliver करना चाहता है अपने colleges के बारे में, be it private or government colleges, please do connect me on Instagram. So starting से ही since I made this channel, people were curious to know more about my college. I had made an early video explaining some details of my colleges, but that was not complete. So students were very curious because I get texts asking me to explain the study, faculty, teachers, etc. everything. तो ये वीडियो वन एंड ओनली होगा जिसमें हम रांची वेटनरी कॉलेज का डिटेल्स को कवर कर रहे हैं, जितना मैंने जाना है इस प्लेस को. माइंड या दिस इज़ अ सब्जेक्टिव opinion of mine, whatever I say about the merits and drawbacks of the colleges. So do not rely completely on me. You can visit and connect to every seniors here in the college to get an accurate understanding for your convenience. So Ranchi Veterinary College, it is not the actual name. क्योंकि ये रांची में है और ये वेटनरी कॉलेज है तो वी यूज़ Ranchi Veterinary College to refer to it, but its actual name would be College of Veterinary Science and Animal Husbandry, CUVSCAH, रांची काकी, उसके बाद जो लगाना है लगा लो. तो College of Veterinary Science and Animal Husbandry Ranchi, that is better known as Ranchi Veterinary College, comes under the Birsa Agriculture University, BAU Kanke. Now mind ya, this is not a separate veterinary university. It is affiliated to Agriculture University and a part of allied science in our country. So BAU has many other colleges that are located in the same area, be it agri engineering, agriculture, forestry. With that, there is a separate at distance college, that is Ranchi Veterinary College. You can check out my video or previous video if you want to see the campus and area alongside the details. तो लोकेशन की बात करते हैं तो कांके में पड़ता है एंड दिस इज़ द ओनली वेटनरी कॉलेज सिचुएटेड इन झारखंड. इसके अलावा यहाँ पे कोई वेटनरी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन नहीं है. तो BVSc ANH की डिग्री झारखंड में इसी कॉलेज से बस मिल सकती है. कांके में पड़ता है ये. कांके इज़ नॉट इन द मेन स्ट्रीम ऑफ रांची बट इट्स ऑन द आउटस्कर्ट्स, जहाँ पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री है, रिनपास है, उससे थोड़ा डिस्टेंस पे कांके में ही BAU University, and it is a very large campus, mind ya, since it's a university having many colleges together, and our college also comprises a very large area. तो जोग्राफिकल लोकेशन वाइज ये थोड़ा सा अच्छी जगह पे है. ठंड में काफ़ी ठंड पड़ता है, गर्मी में काफ़ी धूप पड़ता है. तो मतलब प्लेटू रीजन जो कहते हैं ना, वैसा टाइप का क्लाइमेटिक ट्रॉपिकल क्लाइमेट यहाँ पर है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. जोग्राफिकल लोकेशन काफ़ी अच्छा है. वेटनरी के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, सो आई एम नॉट गोना कवर दैट इन दिस वीडियो. कॉलेज के रिव्यू के रिगार्डिंग हम 3 मेन सेक्शंस में कॉलेज को डिस्कस कर रहे हैं. दैट इज़ द एकेडमिक्स, पढ़ाई लिखाई यहाँ कैसी चलती है. नेक्स्ट इज़ द स्टे, हॉस्टल कैसा है, कैंपस कैसा है, ओवरऑल आपका एरिया कैसा है. एंड थर्ड इज़ द को करिकुलर एक्टिविटीज़. Academics, stay and co-curricular activities. Alongside with this, I'm gonna discuss the merits and drawbacks, like क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे अच्छा है अदर कॉलेजेस से, कौन कौन सा फैसिलिटीज़ थोड़ा सा ड्रॉबैक में है जिसको इम्प्रोवाइज़ किया जा सकता है, या अदर कॉलेजेस से आप कंपेयर करोगे तो आपको थोड़ा यहाँ पे लैक मिलेगा. और एक जनरल सा इन्वायरमेंटल सजेशन जो हम ऑब्जर्व किए. दिस इज़ ऑल सब्जेक्टिव, माई पर्सनल व्यू, नॉट अ एब्सोल्यूट ट्रूथ. ओके, हाँ, एकेडमिक्स वाला सेक्शन पे आते हैं. तो डिस्कस किए हम लोग एकेडमिक्स के बारे में बहुत सारे वीडियोस में कि दिस इज़ अ लॉन्ग कोर्स BVSc NEH. तो 5.5 years जर्नी कंप्राइजिंग ऑफ 19 सब्जेक्ट्स
involving all the clinical and practicals under this course. तो एकेडमिक्स में दो मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है आपको, एक तो थियोरी जानने का होता है, एक प्रैक्टिकल सीखने का होता है. तो थियोरी वाइज एस्पेक्ट से यहाँ पे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो ड्रॉबैक होगा अकॉर्डिंग टू VCI एंड आर syllabus rule, that would be a technical drawback of teaching staff, because there are less number of teachers as required according to the VCI curriculum syllabus. तो टीचर्स का फॉल्ट नहीं है, इसमें फॉल्ट है एक्चुअली झारखंड गवर्नमेंट का, क्योंकि JPSC के थ्रू यहाँ पर रिक्रूटमेंट होती है टीचर्स की, और उसमें बहुत लफड़ा होता है, यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं हो पाता है. तो टीचर्स का क्वांटिटी अगर आप हर डिपार्टमेंट में देखोगे तो वो कम है, बट दैट्स नथिंग टू डू विद द क्वालिटी और योर एडुकेशन, क्योंकि जितने भी टीचर्स प्रेजेंट है हर डिपार्टमेंट में वो अपना फील्ड में एक्सपर्ट हैं. कोर्स तो किसी भी टाइप से आपको थियरी वाइज एक्सप्लेनेशन हो ही जाएगा. Now mind ya, if you are in a college, you cannot expect 100% things to be delivered from the teachers. You have to put in your efforts, but the teachers are full cooperative, super cooperative. मतलब मैंने फर्स्ट ईयर में देखा, एनाटमी हो गया, चाहे आपका फिजियो LPM, या सेकेंड ईयर में भी हमने जितने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, माइक्रो हो गया, आपका पैथो हो गया, टीचर्स अपना 100% देने के लिए तैयार रहते हैं. आपको बस उनसे कनेक्ट करना है, मतलब दे आर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर यू इन टर्म्स ऑफ गिविंग यू द बेस्ट एजुकेशन. सो टीचिंग स्टाफ की कमी है, एक ड्रॉबैक हो सकता है. मेरिट क्या है कि मार के, पीट के, अटेंडेंस बुला के क्लास में कुछ ना कुछ करके दिमाग में आपका थोड़ा बहुत तो घुसा ही देते हैं. मीन्स आई हैव फ्रेंड्स और नॉलेज अबाउट अदर वेटनरी कॉलेजेस ऑल्सो, तो जहाँ पे क्लास ही नहीं हो रहा है या फिर उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रहा है, अटेंडेंस का वहाँ पे पंगा नहीं है या कम पढ़ रहे हैं, उसके कंपैरिजन में रांची वेटनरी कॉलेज में आपको मार पीट के दिमाग में कुछ ना कुछ बैठा दिया जाएगा कि साल के अंत तक में यू माइट नॉट नो एनीथिंग अबाउट द सिलेबस, बट यू वुड नो सम टॉपिक्स दैट यू कैन राइट और यू हैव नॉलेज अबाउट. इवन आई वॉज सरप्राइज एट द एंड सेमेस्टर व्हेन giving exams. I thought I had learned nothing, but in actual there was a lot of knowledge that I had gained actually in the class. So syllabus के हिसाब से टीचर्स जो हैं वो कंप्लीट कर देते हैं पढ़ाई. क्लासेस जो है 9 से 5 है, तो स्कूल वाला कॉलेज वाला ही सिस्टम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ब्रेक मिलेगा बीच में. तो उस ड्यूरेशन में जितना क्लासेस है, अपार्ट फ्रॉम लंच ब्रेक दैट इज़ 1 from 2 PM, और कहीं कहीं अब जैसे हम लोग का 10 बजे से होता है, कभी कभी 9 बजे से क्लास होता है, बट टिल 5 देयर आर क्लासेस. तो थियरी वाइज इट इज़ श्योर दैट यू आर गोना लर्न द थियरीज एस्पेक्ट एंड द रेस्ट इज़ अप टू यू, हाउ डू यू पुट इट. टीचर्स आर ऑलवेज देयर टू डिलीवर देयर बेस्ट. मतलब अगर हो सकता है क्लास में ना समझ आए, आप पर्सनली जा कर के पूछो या आप उनसे बोलो कि नहीं समझ आया, तो कोई टीचर ऐसा नहीं मिलेगा आपको कॉलेज में जो आपको मना कर दे समझाने से या कहे कि नहीं ये मेरा काम नहीं है. मतलब वो लोग मतलब सोचते नहीं है, समझाते हैं. ये एक एडवांटेज काउंट कर सकते हो. हाँ, मे बी ना टीचर्स माइट नॉट नो एनीथिंग एट द इंस्टेंट, मतलब उस मौके पे उनको सब कुछ नहीं पता है या वो चीज़ जो आप पूछो नहीं पता है, बट दे आर मतलब सो कंसिस्टेंट कि वो अगले दिन पढ़ के आएंगे या रिसर्च करके आएंगे या उसके बारे में और पता करके आएंगे, डाउट क्लियर करते हैं. और जैसा मेरा मानना है कि मतलब हम इसको नेगेटिव शेड में बोलते थे, बट ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि कॉलेज में भी आके स्कूल जैसे ही पढ़ाई होता है. वो स्पून फीडिंग टाइप का नोट्स लिखवा रहे हैं, समझा रहे हैं अच्छे से, मेक श्योर करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आए. तो कुछ नहीं करना रहता है, अपना एक सिलेबस का जेरोक्स ले लो, मिलाते जाओ क्या क्या पढ़ाई हुआ, और थ्योरी एस्पेक्ट में जो कवर हुआ है वो क्लास में करते हैं और रिविजन करके चले जाओ. नहीं समझ आए तो टीचर्स हैं. तो थियरी एस्पेक्ट में देयर इज़ नो प्रॉब्लम. And some things in which you might not understand, you can cover it from the standard textbooks or ask the teacher for certain better notes. That can be done. Practical aspect में I think RVC का जो फार्म्स है, बी इट बी कैटल फार्म, गोट फार्म, पोल्ट्री फार्म, वेल डेवलप्ड फार्म्स है. मतलब आई डोंट नो मच अबाउट अदर कॉलेजेस, बट हमारे कॉलेज का फार्म्स को बाहर के लोग भी अप्रिशिएट करते हैं कि यहाँ पे सफिशिएंट क्वांटिटी में एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन और पोल्ट्री यहाँ पे अच्छे खासे क्वांटिटी में है.
तो बीट आपका पोल्ट्री का पीएम हो गया, या आपका डेयरी मैनेजमेंट हो गया, या आप गोट और शीप का देख रहे हो मैनेजमेंट, और ये मेडिसिनल एस्पेक्ट्स, न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स, तो उसका प्रॉपर एक्सपोजर आपको मिलता है। जैसे एलपीएम जो सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में हमारा, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, उसमें जो मैनेजमेंटल एस्पेक्ट्स कवर होता है उसमें तो बहुत अच्छे से आप एक एक चीज़ को प्रैक्टिकल में देख सकते हो। पिग फार्म हो गया, तो ये है। हाँ, लैबोरेटरीज़ की जहाँ बात आती है तो कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स में थोड़ा सा लैकिंग है, मतलब कहीं कहीं प्रैक्टिकल्स जो होता है वो हो नहीं पाता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज़ का कमी है। नाउ दैट बीइंग सेड, आई highly criticized my college a lot about the present situation and scenario, but later on, with the interactions from seniors, I got to understand that it's not the college fault that if something is lacking, it's from the administration and government. तो कहीं कहीं पे थोड़ा सा फैसिलिटीज़ जो है डिपार्टमेंट में कम होता है, कुछ प्रैक्टिकल्स हम लोग नहीं कर पाते हैं, वो हम लोग, खैर हम लोग को सिखाया जाता है, बता दिया जाता है, वीडियोस के थ्रू समझा दिया जाता है, या डमी प्रैक्टिकल या डेमो जिसको बोलते हैं वो दे दिया जाता है, कि मतलब आपको नॉलेज हो जाएगा उसका, उस चीज़ का। You cannot say that you have not done it or you don't know anything entirely about it. But some equipments, due to lack of some resources, might be that you won't be able to do it in an actual manner. This is a drawback, but apart from that, the farm practicals can be done excellently in the farms. आप डेयरी में तो बहुत ही अच्छा मिल्क प्रोडक्शन और बहुत अच्छा मेंटेनेंस आप देख सकते हैं, कुछ भी जा कर के वहाँ मिलेगा। पिग फार्म इज़ डूइंग वेल। पोल्ट्री में भी है बहुत सारा, आप हैचरी देख सकते हो, वहाँ पे उसका ब्रूडर शेड, ग्रोअर शेड सब कुछ है, आपको वैक्सीनेशन वगैरह सब हो जाता है एलपीएम सब्जेक्ट से रिलेटेड। इवन in second year, like patho was our subject, all the practicals were done, like none of the in the syllabus was left. So owing to Mr. Gupta's presence in this college, he made sure that we complete all the practicals in microbiology. All the bacteriology practicals, mycology practicals were done. There was some domains like immunology or virology, for which our institution is upgrading the system to make the practicals happen in a more efficient way. So clinicals में भी VCCs, that is veterinary clinical complexes, the cases do arrive. You can see complicated cases as well. There is some lack of instruments, I would say, like ECG हो गया, X-ray हो गया, और other technical surgery and radiology equipments, but that I think with time can grow, develop, एंड द टीचर्स आर सुपर कोऑपरेटिव। मतलब आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ना है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है, इस चीज़ का हम तारीफ़ कर सकते हैं कि कोई टीचर हेजिटेट नहीं करता या रिलक्टेंट नहीं होता समझाने, बताने या सिखाने में। ये आपके ऊपर रहता है कि आप कितना उनको पोक करके सीख सकते हो, कितना इंटरेस्ट ले सकते हो, बिकॉज व्हेन यू टेक इंटरेस्ट द टीचर्स ऑल्सो टेक इंटरेस्ट इन टीचिंग यू. So by far and large, since the first year till third year up till now, I think I have learned sufficiently some of the technical aspects of the degree. In few domains there are certain drawbacks, but overall academic section is such that if you take interest, you can get your things done according to the syllabus. मतलब आप सीख जाओगे by the time. इंटरेस्ट लेना पड़ेगा और खुद से आगे लीड लेना पड़ता है, बिकॉज no teacher is gonna spoon feed you. You have to take the lead that I want to learn this. Okay, I have not understood this, please explain me. I have not done this practical, I want to do it once more. मतलब हम लोग का पैथो में प्रैक्टिकल होता था, जितना बार भी आप बोलो RBC WBC सब करवाने को वो लोग रेडी रहते थे. इवन LPM में जितना बार भी फार्म खुद चले जाओ, you can take the temperature, you can palpate, auscultate, take the respiration rate, everything is available. Like anybody can go and do it and learn by their own self, and teachers are also cooperative. So on an average scale like 10, I would rate my academics 8. Some would give 7, but according to me, हाँ practical aspect देखोगे तो 7, but अगर आप खुद से भी मैनेज कर रहे हो और टीचर्स का कॉपरेशन ले रहे हो तो 8 on 10 academics. Video is getting longer, I have to cut short. Okay. Next department that I would like to talk about is the next thing I'm going to review is the stay. हॉस्टल फैसिलिटीज़ कैसा है यहाँ पे, थोड़ा लैंग्वेज शिफ्ट करते हैं. तो
बाई फार एंड लार्ज आई हैव लर्नड कि रांची वेटनरी कॉलेज का हॉस्टल्स जो है, मतलब हमारा जो बॉयज़ हॉस्टल्स है वो परफेक्ट हैं। मतलब कमरे हैं, सफिशिएंट साइज़ के कमरे हैं। आप मतलब मैंने रिम्स का भी कॉलेज देखा है, वहाँ का छोटा छोटा रूम होता है, काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ में। ऑल्दो सिंगल रूम छोटा होता है, डबल रूम तो ठीक ही है। हमारा रूम जो है वो मेरे फ्लैट मतलब मेरे बिल्डिंग के हॉल के साइज़ का वहाँ रूम है, काफ़ी सफिशिएंट है। अब तो हॉस्टल के लिए फंड्स आया है तो काफ़ी इक्विप्ड हो गया। आई शुड शो यू इन माय न्यू वीडियोस कि मतलब सोलर प्लेट्स पूरा लग गए हैं, पूरा पेंट हो गया है, पानी का फैसिलिटी रहता ही है, तो स्टे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैंपस का एरिया बहुत लार्ज है, पेड़ लगा हुआ है, इन्वायरमेंट काफ़ी हेल्दी है, मतलब पोल्यूशन अदर एरिया से काफ़ी कम मिलता है यहाँ पर ही। और एक जो होता है ना कंफर्ट, जो बच्चा खोजता है अपना आने के बाद में कि मेरे को कंफर्ट लगे, वो यहाँ पे आई गेस हो जाता है। शुरू शुरू में थोड़ा लगता है इन्वायरमेंट चेंज से, बट ग्रेजुअली नाउ आई फील वेरी कंफर्टेबल स्टेइंग एट माय हॉस्टल रूम। आई एंजॉय एक्चुअली। गर्मी थोड़ी लगती है, वो कॉलेज को थोड़ा कूलर वूलर लगा देना चाहिए, बट अदर देन दैट इट्स वेरी फाइन, लाइक एकोमोडेशन। और हाँ, टॉकिंग अबाउट द मेस, मेस एक कंस्ट्रेंट यहाँ पे हो जाता है, बिकॉज खाने पीने का मेरे को लगता है कि एक अच्छा वेल डेवलप्ड सिस्टम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हर बार मेस चेंज होता है बिकॉज कुछ कंसिस्टेंसी नहीं है। एक ये भी हो सकता है कि बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं तो सबका टेस्ट प्रेफरेंस मैच नहीं करता है, पर ये एक डेफिनेट चीज़ है कि मेस वाला हमेशा बदमाशी करता है। वो मतलब प्रॉफिट के चलते शुरू शुरू में अच्छा रहेगा पर बाद में ख़राब हो गया, ऐसे करके बहुत मेस बदली होते हैं हमारे हॉस्टल में, और लगे रहता है कुछ ना कुछ मतलब। बट जो खुद से खाना बना लेते हैं या थोड़ा हॉस्टल से बाहर जिनका गाड़ी है जो जा सकते हैं, उनके लिए खाने का कन्वीनियंट है। अब कैंटीन खुल गया है कॉलेज में, तो कैंटीन से भी आप कुछ कुछ खा सकते हो, मतलब मैनेज हो जाएगा। बट एक स्टडी मेस जो रन होता है ना, वो बॉयज़ हॉस्टल में नहीं, गर्ल्स हॉस्टल में फिर भी है। गर्ल्स हॉस्टल का एक कंस्टेंट ये है कि वहाँ पे अभी रूम्स का शॉर्टेज हो गया था, तो न्यू रूम्स अभी बन रहे हैं, तो ये और अच्छी बात है बिकॉज न्यू स्टूडेंट्स को अच्छा फर्निश्ड रूम लग्जरी वाला मिलने वाला है। The stay is fine, you are gonna enjoy the stay. About the mess or food, uh, for girls side it's still fine, for boys side is also fine provided it runs consistently. Otherwise you will have to look for alternative sources like going outside to the market for eating or resorting to canteen, or you can also opt for tiffin services because few of the students prefer taking tiffins from outside rather than eating at the college mess. So overall, if talking about the mess and stay, I would rate it 7 on 10 because खाने का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, but stay is fine, you will enjoy the stay. Third thing that I would like to talk about in reviewing my college would be curricular activities. Like I always say कि पढ़ाई तो होता है, पर पढ़ाई के साथ साथ होना चाहिए कि आपका करिकुलर एक्टिविटीज़ पे बहुत ध्यान होना चाहिए। करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या, अदर देन स्टडीज़, जो एक्टिविटीज़ आपको इंगेज रखें, जिसमें आपको इंटरेस्ट लो आप, लाइक स्पोर्ट्स हो गया या सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, पोएट्री हो गया, म्यूज़िक हो गया, कोई भी ऐसा एक्टिविटीज़ जिसको आप इंजॉय करो और जो रिवॉर्डिंग हो एट द सेम टाइम। तो रिसेंटली अभी हमारा एनुअल स्पोर्ट्स आखिर कंक्लूड हुआ है, तो कॉलेज मेक श्योर कि मतलब हमारा ऐसा ना कि स्टूडेंट्स ही रिलक्टेंट रहते हैं पार्ट लेने में, या उतना पॉपुलेशन नहीं है स्टूडेंट्स का, तो उतना स्पोर्ट्स इवेंट ग्रैंड वे में कंडक्ट नहीं होता, सब भागते हैं। बट कॉलेज मेक श्योर दैट यू डू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स। तो हर साल एनुअल स्पोर्ट्स यही फरवरी और मार्च के महीने में कंडक्ट होता है, 1 महीने तक चलता है। सारा जितना गेम हो सकता है खिलाया जाने लायक सब खिला दिया जाता है ऑलमोस्ट, इंडोर हो आउटडोर हो, चेस, टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, मतलब जो भी, कैरम, जितना भी आप खेल सोच सकते हो, कोशिश किया जाता है कि सारा स्पोर्ट्स खिला दिया जाए। हाँ, लेकिन साल में 1 महीने ये स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज होता है। अदर देन दैट यूनिवर्सिटी का जिम्नेजियम और बड़ा सा प्लेग्राउंड भी है, जहाँ पर कि जिम्नेजियम में इक्विपमेंट्स हैं फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और प्लेग्राउंड है फॉर स्टेमिना एंड एथलेटिक्स। तो कुछ लोग इंटरेस्टेड जो रहते हैं स्पोर्ट्स या फिटनेस में, वो लोग जाते हैं खेलने को, बाकी टाइम तो ग्राउंड खाली रहता है और लोकल जा कर के खेलते हैं, क्योंकि हम लोग उतना टाइम नहीं दे पाते हैं खेलने में, किसी का पैशन नहीं है तो क्यों ही जाएगा, तो वैसा होता है। बट
फैसिलिटी है, खेलने के लिए भी फैसिलिटी है, और आपका आर्ट्स एंड रिक्रिएशन में लास्ट ईयर से, जब से हमारा एक स्टूडेंट्स क्लब बना है, तब से वेट उत्सव ऑर्गेनाइज हुआ था। इट वाज ग्रैंड एक्चुअली। तो उसमें हर टाइप का डांसिंग, सिंगिंग, सब इवेंट्स को, पोस्टर मेकिंग, रंगोली मेकिंग, क्विज, डिबेट, सब ऑर्गेनाइज किया गया था। बहुत अच्छे से हुआ। लाइक इट वाज द फर्स्ट टाइम आई विटनेस लाइक यस द रिक्रिएशनल एंड आर्ट्स इज बीइंग प्रमोटेड। अदर देन दैट, हमारा एग्रीकल्चर से जो भी कॉलेजेस हैं, वहाँ पे जब बीएयू में कुछ फंक्शन होता है तो यहाँ से स्टूडेंट्स जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं सिंगिंग में, डांसिंग में। तो मतलब हॉबी मरेगा नहीं आपका। कुछ भी करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट है, कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म मिल जाएगा आपको शो करने के लिए। इंटरेस्ट की बात होती है कि खुद इंटरेस्ट है तो आपको चांस मिलेगा। जैसे क्विज हो गया, डिबेट हो गया, अदर अदर कॉलेजेस से इन्विटेशंस आते हैं तो फॉरवर्ड कर दिया जाता है ग्रुप में कि जो इंटरेस्टेड हो पार्टिसिपेट करो। तो इनकरेजमेंट रहता है यहाँ पे कि आप कुछ भी करना चाहते हो, यू कैन डू इट for the sake of betterment of the college, for the sake of your own personal growth, play sports, participate in dance, music etc. और एक इन्वायरमेंट भी अच्छा लगता है कि बोर्डम नहीं है, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई या और कुछ यहाँ पे है नहीं। तो उससे थोड़ा हम कहते हैं कि मूड रिफ़्रेश होता है और होना चाहिए। तो यहाँ है, उतना फैसिलिटी है कि आप सीख सकते हो, कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए तो सरस्वती पूजा और जन्माष्टमी, दो पूजा हम देखे हैं यहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है। वो स्टूडेंट्स लोग ही करते हैं, टीचर्स से और स्टूडेंट्स से चंदा कलेक्ट करके। हेक्टिक काम है, पर थोड़ा सा ये टीम वर्क में, कोऑपरेशन में, इवेंट मैनेजमेंटल स्किल्स में और आपका सिचुएशंस को हैंडल करने का एक एक्सपोजर देता है कि कैसे आप किस किस सिचुएशन में कैसे कैसे अपना कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करके एक मतलब टीम वर्क और लीडरशिप क्वालिटी और यूनिटी का थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। तो सरस्वती पूजा इस बार बहुत अच्छा मनाया गया था। हम कुछ कवर नहीं करते आजकल, आई एम टू लेजी टू शूट एंड एडिट एंड वट एवर, आई कैन जस्ट नॉट डू इट। तो सरस्वती पूजा बहुत अच्छा हुआ था। अभी एनुअल स्पोर्ट्स कंडक्ट हुआ, वो भी बहुत अच्छा हुआ था। तो कॉलेज में इवेंट्स होते रहते हैं हाँ, बट अब जो है अब सूखा पड़ेगा बिकॉज अप्रैल में ईद के टाइम शायद वो होगा शेड्यूल, उसके बाद से मई जून जुलाई, बिकॉज देयर इज़ नो प्रोग्राम, ओनली एग्जाम्स एंड क्लासेस और गर्मी। बट फरवरी मार्च का महीना हमेशा इंगेजिंग रहता है, यहाँ कुछ ना कुछ होता ही है। और नवंबर दिसंबर का टाइम भी, नवंबर बेसिकली, दिसंबर में तो सबके एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, वो एक हो गया। जन्माष्टमी जो होता है वो भी ऑर्गेनाइज करते हैं स्टूडेंट्स लोग। तो ओवरऑल आई वुड से करिकुलर एक्टिविटीज़ भी 7/10 है। कहीं कहीं पे वो कॉलेज को या एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए स्टूडेंट्स को। कहीं कहीं पे वो सपोर्ट उस लेवल का नहीं होता है जितना हम लोग को चाहिए रहता है का मतलब कोई इवेंट में ऑर्गेनाइज करना है तो टाइमिंग परमिशन का रिस्ट्रिक्शंस होता है, देन इवेंट्स का परफॉर्मेंसेस का रिस्ट्रिक्शंस होता है। दैट इज़ ऑल ड्यू टू कल्चरल नॉर्म्स। तो वो टैबू हो जाएगा अगर आप कुछ बहुत हट के करने का कोशिश किया, ओवर स्मार्ट बनने का कोशिश किया, तो कॉलेज इज़ नॉट गोना टॉलरेट दैट। दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ thing I observed. But apart from that, you are free to dance, you are free to sing, you are free to debate, you are free to take part in quiz, elocution, sports, whatever you want to play, like going outside. तो ठीक ठाक है। These three aspects are the major fundamental aspects for studying in any college. Like you have to know about the academics, you have to know about the accommodation and food, and you have to know about the curricular activities that's taking place. Apart from that, the few things that matters is the environment of the college. तो पर्सनल ग्रोथ किसी का भी होता है तो वो डेवलपमेंट जो है, क्योंकि 5.5 साल इज़ अ लॉन्ग टर्म, तो इन्वायरमेंट वेयर यू रिजाइड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द personality. In this aspect, I would say, as far as the natural environment is considered, be it be the location, be it be the weather, be it be the geography, be it be the campus, it's very nice.
मतलब आप सुबह उठ के 5 बजे चले जाओ वॉक करने, जॉग करने के लिए, या आप शाम में छत पे बैठे हो, हवा चल रहा है, तालाब है पास में, एकदम हरियाली ही हरियाली है पूरा कैंपस में, इतने सारे लाइफ स्टॉक्स हैं, तो थोड़ा वो भी देख के मूड रिफ्रेश होता है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट इज़ वेरी एस्थेटिक एंड प्लीजिंग, यू कैन नॉट कंप्लेन अबाउट दैट. Human involvement as far as is concerned, so in college life, it's not about just this place, it's about everywhere. You get to meet all sorts of people, like अच्छे से अच्छा लोग भी मिलेगा, बुरे से बुरा लोग भी मिलेगा, हेल्पफुल से हेल्पफुल लोग मिलेगा, सेल्फिश से सेल्फिश लोग मिलेगा, पढ़ाकू से पढ़ाकू लोग मिलेगा, और एकदम ना पढ़ने वाला से एकदम ना पढ़ने वाला मिलेगा, तेज से तेज, लूल से लूल, और मतलब हर स्फीयर का, टीचर्स, प्रोफेसर्स, हर से हर एस्पेक्ट का, चाहे टीचर्स हो, प्रोफेसर्स हो, बैचमेट्स हो, सीनियर्स हो, हर एस्पेक्ट का लोग आपको मिल जाएगा यहाँ पर ही। आप किसी भी टाइप का लोग को से इंटरेक्शन जो है कर सकते हो। तो दिस आई से कॉलेज लाइफ इज़ अ प्रैक्टिस मैच, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के लोग से आप मिलते हैं, इंटरेक्शंस होता है, और आप सीखते हैं कि किस टाइप के लोग से कैसे डील करना है। मान लो कोई बहुत लड़ाकू है तो हर समय उससे लड़ा नहीं जा सकता, तो एक मिडवे रास्ता निकालना होता है। मान लो कोई बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, सोशली एंशियस है लाइक मी, तो उससे कैसे डील करना है। मान लो कोई बहुत ज़्यादा ओवर फ्रेंडली है तो उसके साथ कैसे रहना है। मतलब टाइम किल होता है अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन में रहोगे तो। So this is a practice match because in the world we are gonna face many people of the same personality, so it's a good exposure. बाकी थोड़ा सा यहाँ पे एक ये चीज़ हो जाता है कि ड्यू टू सम इंटरनल इश्यूज थोड़ा सा इंटरेक्शन में थोड़ा वो होता है कि नॉट एवरीबडी इज़ फ्री टू इंटरेक्ट विथ एवरीबडी। किसी का किसी से पंगा हो गया, किसी का कुछ हो गया, तो वो इश्यूज माइनर है, आते रहता है, हर कॉलेज में होता ही है। Apart from that, if you are good and if you know how to respect others and you know how to treat others with dignity and love, तो आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। You can make your place in everyone's heart here. जब कोई अच्छा है तो वो अच्छा ही है, उसको किसी को पीपल प्लीजर बनने का ज़रूरत नहीं है। पीपल विल इवेंचुअली लाइक दैट पर्सन एंड यू हैव टू इंटरेक्ट विद पीपल in order to live a social life. Now, constraints or the drawbacks of Ranchi Veterinary College. This is the main aspect that I would like to cover because एक लौता कॉलेज होने के बाद भी यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, पर वहाँ से सपोर्ट आता नहीं है। और कहीं कहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है, चाहे वो यूनिवर्सिटी का ही क्यों ना हो, उसको जहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए जो काम करना है वो करता नहीं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल स्टाइपेंड इशू। हमारे कॉलेज का जो प्रेजेंट स्टाइपेंड है 6000 भी शायद नहीं मिलता है, बहुत सारे हमारे सीनियर बैचेस को नहीं मिला पैसा, और इट्स स्टाइपेंड इज़ वेरी लो, लाइक वेरी वेरी लो प्रेजेंटली। 400-500 क्या होता है। तो ये एक चीज़ है जिसके लिए मतलब बहुत सारे लोग पूछता भी है कितना पैसा मिलता है, कितना पैसा मिलता है। भाई नहीं मिलता है ज़्यादा पैसा, पैसा मिलता ही नहीं है। अगर मिल भी गया तो कुछ भी मिला तो वो लकी हो गए। तो that is a thing which I feel is a drawback here, and for that we have to fight together for our rights. बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा हुआ है जहाँ स्टूडेंट्स लोग लड़ के अपना स्टाइपेंड बढ़वाए हैं अपना हक का मांग करके, बट हमारे कॉलेज में अभी स्टाइपेंड प्रेजेंट ये में बहुत कम है। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू से इज़ द फर्स्ट थिंग जो हम मेंशन किए थे, टीचर्स और स्टाफ्स का रिक्रूटमेंट। VCI काउंसिल के हिसाब से जितना टीचर्स मैंडेट होते हैं कॉलेज में पढ़ाने के लिए उससे बहुत कम है। हालांकि हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ टीचर है, डिपार्टमेंट तो चल ही रहा है, बट एक मार्क होता है, उस मार्क तक टीचर्स अभी नहीं है। ये हम सोच रहे हैं बोलना है नहीं बोलना है, पर चलो एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नमेंट सपोर्ट थोड़ा सा जो है, आई गेस झारखंड गवर्नमेंट को ध्यान देने की ज़रूरत है थोड़ा सा, क्योंकि एक लौता वेटनरी कॉलेज है यहाँ पर। We used to hear that there was a time when this college glory was at its peak, मतलब बहुत फेमस हुआ करता था। People were dying to take admission in this college and it had a reputation all over, but with time it has faded away certainly, and that is due to the negligence from the government and administrative services. So although things are changing, like अब कॉलेज में फंड्स आने लगा है थोड़ा सा,
कॉलेज कैंपस अच्छा हो गया है, आप आओगे विज़िट करने तो देखोगे गेट लग गया है, हॉस्टल बन गया है, कॉलेज में भी बहुत सारा चीज़ जो नहीं था पहले अब ला दिया गया है, टीचर्स का भी रिक्रूटमेंट और रेगुलर बेसिस पे हो रहा है. तो होपिंग सो इन द कमिंग ईयर्स दिस कॉलेज इज़ अगेन गोना grow in its glory and fame, but at the present situation थोड़ा सा lacking है in the sense of teachers and certain practical instruments and facilities. But apart from that, if you graduate from here, as far as I feel, मतलब ऐसा होगा ही नहीं कि आपको कुछ नहीं आता है, कुछ ना कुछ दिमाग में भर के भेज दिया जाता है. हाँ, क्लिनिकल एक्सपोजर जो है वो यू विल गेट आफ्टरवर्ड्स व्हेन यू प्रैक्टिस इन रियल लाइफ, बट बेसिक्स जो होता है क्लिनिक्स का वो भी यहाँ पे सिखा दिया जाता है. तो बाई फार ड्रॉबैक्स में हम कहेंगे कि इंटर्नशिप का थोड़ा सा सैलरी बढ़ना चाहिए, बिकॉज स्टूडेंट्स वर्क हार्ड and next is teachers का regular recruitment, and that is all up to the government services, and college is always ready to improvise itself, because in the recent times since I have been here, a lot of changes I have witnessed that have been towards a positive shift, so I hope so that will grow in future as well. And last one is support from the government, that is be it in terms of our welfare, be it in terms of our e-tour, be it in terms of providing the instruments and facilities. That technical support is necessary for the college to grow. लास्ट क्वेश्चन क्या आना चाहिए कि आप इस कॉलेज में पढ़ सकते हो या नहीं पढ़ सकते हो फॉर अ स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव. See, if you are very greedy about the internship stipends, as far as I see in the comments or personal Instagram messages, so that should not be. Other than that, if you want to learn, if you are interested in pursuing the course, this college is a wholesome place. You can come and visit over with anyone you like to and get a review about it from other persons, not just from my perspective. Also, I am thinking of doing a brief reviews of other colleges as well. So if you would like to know about different colleges, or if someone is willing to share information about their colleges, please do connect me again. And thank you for being there, and we'll see you with the next good video soon. So till then, take care. Bye bye.